हेलो वैभव। हेलो वैभव। क्या खा रहा है? कुछ नहीं, खाना खा रहा था। ये ऐसी ही तेरे क्या कर रहा है? हेडफोन ठीक कर रहा था। Your voice is not coming. दिव्यांश, हिट दो। पढ़ भी ले अब। क्या बोला? Do you have your books with you? Yes, ma'am. Okay. Watson. See my screen? No, ma'am. No, ma'am, we can't see your screen. Ma'am, we can see. Ma'am, I can see. Do you No, see I my can screen? also see. Ma'am, I I can cannot. also see. Fine, I fine, can fine. ये Fine. also see. Ma'am, we can. शॉपिंग करनी पड़ेगी. Yes. डिलीट मार दो वो मैम. वो पेंसिल बहुत मैम. No, delete है. Fine. Delete है. See my screen, Vatsal? यहाँ पे टेबल जो आपने Vatsal? Yes, ma'am. Yes. Let's Yes, start. ma'am. Let's take a quick recap of the poem. When summer's in city, the poem about, as the title suggests, it is about an ice cream. And we have discussed in our previous class, who is ice cream man, what does he
Ice cream man is a person who sells ice cream, and he has variety cream, chocolates, and he has variety of cold drinks too, chilled cold drink. He comes around us, his car to sell his ice, and summer season ice cream, and the children love to have cream. And some the city, Who can do this? I have in the group. And difficult. Excuse me, ma'am. Ma'am, we have Yes. to write poem also. Poem also. Yes. Ma'am, we have to write question answer. Yes. Today we will be doing question answer. Fine. Ma'am, do you have given we have to do this one only? I have given this sheet on 11th April. I am just recapping the poem. Fine. I am revising the poem right now, and today we will study the question answer of the poem. That's why I am revising it. Fine. Now, look at the first line. When summer's in the city and bricks a blaze of heat, means when it is the summer season and everything gets heated up, it reflects heat to us. When we touch the bricks and any object which is under the sunlight, it gets heated up. The ice cream man with his little cart, and then the ice cream man comes with his little cart, goes trundling down the street. Trundling means to move around, and ice cream comes. Siddhi, can you see my screen? Fine. Goes trundling down the street means the ice cream man comes with his cart to our location where we live. Beneath his round umbrella, and on his cart there is a big round umbrella, and beneath means under the round umbrella. Oh, what a joyful sight! The children see a very happy sight. Sight means a view. To see him fill the cones with mound, and the children see the ice cream man filling the ice cream cones with the ice cream. Mounds means a pile or a heap, semicircular portion that is put over the cone of ice cream, right? We must have seen in the big bazaar where the ice cream man puts heaps of variety of ice creams over a cone, right? Of cooling brown and white means the ice cream is cool and it has colors like brown and white. And we all know that brown color resembles the chocolate flavor and white color resembles the vanilla flavor. Vanilla, chocolate, strawberry or chili things to drink means he has in his cart the various flavors of ice cream like vanilla, chocolate and strawberry. Strawberry resembles the color pink. Or chili things to drink. In his cart he has some chili drinks to drink. Chili means cold drinks to drink. From bottles full of frosty frizz means
There are bottles in his cart with it, and it is filled up with cold, colorful liquid. Green, orange, white or pink. And the colorful bottles of the Frosty Fizz. Frosty means cold and fizz means the chilling and bubbling sound of the cold drink. Whenever we open a cold drink and it makes a hissing and bubbling sound like fine. From bottles full of Frosty Fizz, the colorful liquid is of many colors like green, orange, white and pink. His cart might be a flower bed. The poet is comparing his cart to the flower bed. Flower bed is a place where many flowers are grown. Fine. His cart is compared to a flower bed of roses and sweet peas, where there are many flowers, like there are roses, there can be marigold. The poet has mentioned there the two names of the flower, sweet peas and roses. The way the children cluster around, and the poet is saying, just look at the children, the way they cluster around the ice cream man. Cluster means to gather, to be crowded, to surround a person. As thick as honeybees means they are surrounded, they have gathered around the ice cream man like honeybees gather around the flowers. Fine. Here the children are compared to honeybees and the ice cream cart is compared to flower bed. Avni, is it clear? The poem is composed by Rachel Field. The poem is composed by Rachel Field. And now just revise the hard words. Blaze. Blaze means a bright flame of fire. Cart. Cart is a vehicle that can be either of 2 or 4 wheels and that is pushed by a person. When we go to a mall, when we go to Big Bazaar, what do we carry? What do we carry to keep our things in it? A cart. Cart is a vehicle that has 2 or 4 wheels and it is carried by a person. Trundling, Tavish. Tavish? Tavish? Ma'am, in question number 5, what is the answer? What is the answer of question number 5? I'll explain it. Right now I am explaining the poem and hard words. Okay, After ma'am. that I'll go with the question answer. Fine, Tavish? Fine? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Trundling. Trundling means to move on small broad wheels. Like it describes the movement of the ice cream man. He is moving on small broad wheels. It means the cart has small broad wheels. Siddhi? Yes, Siddhi? Ma'am, you are explaining us a poem and the hard words, but ma'am, you have not given us the hard words to write in the notebook. Yes, because most of the hard words are covered in the word meaning. That's why I didn't give you. Okay, ma'am. Fine? Because Okay. Beneath, I have already told you beneath means under. Chili, chili means cold. Mound, mound means heap or pile.
of a material. That semicircular portion we see, a bulged part over a ground. Fine. Cluster, gather around. Cluster means to make a group. Sight, power of seeing. The power from which we can see is sight. Frosty frizz, chilled drink making a hissing and bubbling sound. Chilled drink which makes a bubbling and hissing sound. Fine. I have revised the poem and hard words and difficult words to you. Now the poem and the concept will be clear to all those who did not attend my previous class, or they might be having any confusion. So I have already revised this poem to you. Now we will take the question answer of this poem. Everything clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt? Is there any doubt? No, ma'am. We have my question. Ma'am, there is question number 5. Indrajit, I am explaining it. Wait. Now, just look at the question answer. They are the question answer from your textbook. Fine. You brought the textbook, and at the last of the poem, there are some question answer based on this poem. Indrajit, Vaishnavi. Yes, Vaishnavi. Ma'am, we have write question answer in notebook. Yes, you will write question answer in your notebook. Ma'am, Fine. No, not now. I'll give you it as a homework. okay, ma'am. Fine? Okay. Fine. Okay. Indrajit. You have raised your hand. Yes. Now, just read the question number 1. In which season ice cream is popular? In which season ice cream is popular? I am unmuting you. You will give me answer. Ice cream is popular. Cream is popular in summer season. Ice cream is popular in summer season. Ice cream is popular in summer season. Indrajit, ice cream is Popular in summer season. Now, next question. Is popular in Who is joy on seeing the ice cream? 2,
Feel joyful on seeing the ice cream Who man. feels joy on seeing the ice cream man? Children feel joyful on seeing the ice cream man. Joy? Who feels joy? Children feel joyful on seeing the ice cream man. Joyful on seeing the ice cream man. Fine. Is it clear to all? Yes, ma'am. Name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. On the basis of your reading, vanilla, can you tell me? chocolate, man has vanilla, chocolate, and strawberry flavor of ice cream in his cart. Has vanilla, The ice cream man has vanilla, chocolate, and strawberry flavors. ice cream man has vanilla, chocolate, strawberry flavors of ice cream in his cart. Fine, is it clear to all? Clear? Okay. Let's move on to next question. What are the two things that the ice cream man is selling? What are the two things? There are two things which were in the cart of ice cream man and he was selling it to the children. Yes. You can message on the chat if you know the answer. Do you know the answer? What are the two things that the ice cream man is selling? Yes, yes. Anubya and Arav. Yes. Yes? Ma'am, the ice cream man is selling ice creams and cold drinks to the children. Very good. What is the ice cream cart compared to in the poem? When we read the poem, we discussed that the poet has compared the ice cream man to what? What? Answer me. The ice cream cart is compared to what? Ridyansh. Yes, Vatsal? Yes, Vatsal? Ice cream cart is paired to a flower bed. Very good. Tejas? 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 Yes, ma'am. Tejas? Were you Yes. saying something? No, ma'am. You have raised your hand. No. Dhanisha? Dhanisha? Indrajit?
You all understood the concept of question answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Revising it again. If you have any doubt, you can clear it. Ma'am, you send it at Yeah. ma'am, you send the worksheet in the group. Homework. Yes. Ma'am, you send the worksheet in the group. You will write these questions. Yes, I will send this answer sheet in your class group, and you will write it in your notebook. Fine. Let's revise it again. In which season ice cream is popular? Ice cream is popular in summer season. Question number 2. Who feels joyful on seeing the ice cream man? We have already read that the children feel joyful on seeing the ice cream man. Question number 3. Name the different flavors of the ice cream the ice cream man has in his cart. The ice cream man has vanilla, chocolate and strawberry flavor ice cream in his cart. Question number 4. What are the 2 things that the ice cream man is selling? Ice cream man ice and drinks. Cold drinks from the bluff frosties. Question number 5. What is the ice cream cart comparing the poem? Ice cream cart is compared to what in the poem? Ice cream cart has been compared to a flower in the poem. Yes, yes, yes. You all are giving answer very good. Good. Flower bed, cold drink, flower bed, Arush Narula flower bed, ice cream and cold drink, Ridyansh good, Siddhi cold drink, Arush ice cream cold drink, cold drinks and ice cream, strawberry, chocolate, vanilla, Arush, Kashni, summer, very good. From Indrajit to all, flower bed, very good Indrajit, Arush Narula, summer season, yes. I think you all have understood the meaning of the poem and the question answers as well. Now we will just look at the worksheet. Fine. Complete the poem. On the basis of your reading of the poem, you will have to complete this worksheet. Like when summer's in the city, then what? What is the second line? And bricks ablaze of heat is the second line. The ice cream man with his little cart. Then what will be the fourth line? Tejas Jindal. Flower bed, flower bed, flower bed. You can answer in it one word. Fine. When summer's city is, you will have to write second line. Then ice cream man with his little cart. You will have to write, yes, Ridyansh. 1 second, I am unmuting you. Yes, Ridyansh. What? Yes, the ice cream. Yes.
Ma'am, what? Ma'am, question. You have raised, yes, you have raised your hand. That's why I am asking you. Like complete poem. This is the worksheet. And when summer's in the city, the first line is written and the second is missing. You have to complete the poem. Like Yes. when summer's in the city, then second line will be it's a blaze of heat. Ice cream man with his little cart, the third line is written and the fourth line is missing. I am asking you Missing. that you have read the poem and on the basis of your reading, you complete these lines. Fine? Okay, ma'am. Okay. When the city and blaze of heat, the second line, the ice cream man with his little cart, third line, goes trundling down the street. Beneath his round umbrella. Oh, what a joyful sight! Fine. To see him fill the cones with mounds, and this line is itself written. You have to fill only 1, 2, and 3 lines in the worksheet. Fine. Now you can yes. Who is the poet of this? Has raised very field. Yes. Ma'am, we can't see the worksheet. See? Okay, fine. You must have missed the first part. Complete poem. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes. Complete the poem. There are few lines written on the sheet and some line. You will have to fill these lines with the lines of the poem. Like when summer's in the city, you will write the second line. Like in the city, bricks a blaze of the ice cream little car. And the fourth line on the street, you have to complete this lines of poem on the basis of your reading the poem. And I have asked the question, who is the poet of the poem? Marcel has answered yes. Rachel Field means like clay. Yes. You will have to fill the box. Dogo. Which has rhyming words. Label Fine. Like hard, yard. If you have any doubt, you can ask me. Vatsal, Right or you have raised your hand. गलती से हो गया था और हैंड करना भूल गया था Okay. Okay. Say it was done by mistake. Yes. Siddhi, I can hear you. the right that one question boxes with rhyming words that right or right will be same. Right or right will be same.
They will be rhyming or not? Right or right? Then they will be rhyming, I think. Same. Given you the answer, you can check. That is all for today. If you have any query, you can ask me. Excuse me, ma'am. Okay. Boom, boom, boom. Na 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 तेरे लिए. Bye, ma'am. Bye, Okay, ma'am. that's all for today. Bye. Bye, ma'am. So that's boom. Preet, हाँ, नंबर दियो जरा अपना. अरे किस बात का नंबर? तुझे क्या करना शेयर नंबर से? क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर. अरे अभी तक सपना नहीं छूटा क्रिकेटर बनने का. अभी तेरा छूट जाएगा कभी ना कभी तो. नहीं छूटेगा. प्लान पे टूटेंगे. क्रिकेट में बॉल लगेगी मुंह पे. बहुत बार फिर ऐसे लगी रोते है. हुए. बहुत बार लगी है. वो तो मैं भी खेलता हूँ. मेरे सर में पट्टी भी चढ़ी हुई है. लेदर की बॉल से खेल रहे थे ग्राउंड में. अरे लेदर रेड वाली कौन सी कितने पीस की है? 100 रुपए की. मेरी 4 पीस की. व्हाइट या रेड? मैं बॉलिंग करवा रहा था, बैट्समैन ने सीधा स्ट्रेट मारा, मेरा मुंह बजा. यस वैभव पंत, हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था? चिल्ड्रेन फाइन. ओके, नाउ आज हम पिछले सेशन में हमने जो पढ़ा था आज उसको कंटिन्यू हुए हम बात करेंगे पत्र लेखन. पत्र लेखन हमने पिछले सेशन का हमारा विषय था. पत्र लेखन में हमने औपचारिक पत्र पढ़े थे. जिसको कुछ समझ में ना आए उसके लिए 10 मिनट का सेशन बाद में रहेगा. आप अपने क्वेश्चन और डाउट क्लियर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी डाउट है आप लिखकर पूछ सकते हो या फिर ना हैंड करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हमने पत्र लेखन पिछले सेशन में औपचारिक के विषय में बात की. मैंने औपचारिक का प्रारूप आपको भेजा आपके ग्रुप पर. ने वो प्रारूप लिखा था. आप सबने पत्र लेखन का जो प्रारूप मैंने भेजा था वो अपनी नोट कर लिया. ओके, वेरी गुड. कितने बच्चों ने नहीं लिखा है? हाथ ऊपर करके बताएं कितने बच्चों ने नहीं लिखा है. क्यों आराध्या? ये तो हमारी बात हुई थी पिछले सेशन में. हमने कहा कि आपको लिखना है, निपुण लिखना है बेटा. अभी तक नहीं लिखा है तो आपको वो लिखना है. आपको अनौपचारिक और औपचारिक दो तरह के पत्रेंस पता चल गया था. औपचारिक वे पत्र होते हैं जो ऑफिसेस के प्रिंसिपल को और दूसरे लिखे जाते हैं. और अनौपचारिक वे पत्र होते हैं जो हम अपने स्वजनों को लिखते हैं, जो हम अपनों को लिखते हैं, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, बहन हो, भाई हो. इनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक में आते हैं. इतनी बात क्लियर होगी? जस्ट गिव योर थम्स. अगर आपको आ गई है तो थम्स बताइए. अभियान, यस. Excuse me, who is with me?
ऑब्जर्वर के साथ कौन है? मुझे पत्र वाला नहीं मिला। हाँ, मुझे पत्र लेखन का नहीं मिला। नहीं मिला, ठीक है, आप अपने ग्रुप पर देखिए, मैंने आपको भेजा है, और अगर नहीं मिला है तो एक बार मैं फिर से समझा तो देती हूँ, बाकी का आप अपने ग्रुप में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ग्रुप में डाला है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। यस मैम, आप कुछ बोल रहे सर, जो बच्चों को डाउट हो लास्ट के 10 मिनट डाउट के सेशन के लिए रखे हैं, तो प्लीज उन बच्चों को अनम्यूट करने में मेरी मदद कर दीजिएगा। ओके मैम, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फाइन नव्यान? यस मैम। ठीक है, आज हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं हनूर, आपको अनम्यूट मत करिए। ओके बच्चों, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि औपचारिक हम ऑफिस या संपादक या प्रिंसिपल, मिनिस्टर, किसी बुक सेलर वगैरह को लिखते हैं। जो ऑफिस को लिखे जाते हैं वे औपचारिक पत्र हैं, जो अनऑफिशियल पत्र हैं जैसे व्यक्तिगत पत्र जिन्हें भी कहा जाता है, वे अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं, जो हम अपने माँ, बहन, भाई, सगे संबंधियों को लिखते हैं। दोनों का प्रारूप मैंने आपके ग्रुप में भेजा है, आप उसमें से एक बार देख लीजिएगा, और हमने पिछले पूरे सेशन में इसी के संदर्भ में बात की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम निबंध की बात करेंगे कि निबंध किस तरह से और कैसे लिखा जाता है। आप चूंकि 5th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपको अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा। निबंध थोड़े ज्यादा शब्दों में लिखा जाता है, अनुच्छेद छोटे शब्दों में लिखते हैं, मतलब कम शब्दों में लिखते हैं। अनुच्छेद लिखने के लिए हमें विशेष रूप से 4 प्रकार की चीजों को ध्यान रखना होता है। वे कौन सी हैं? जैसे अनुच्छेद वर्णनात्मक विषय पर होते हैं, वर्णनात्मक विषय होते हैं, जैसे उगता हुआ सूरज, पालतू कुत्ता, मेरा विद्यालय, दीपावली की जगमगाहट। जिन चीजों पर हम वर्णन कर सकें वे होते हैं वर्णनात्मक निबंध। बच्चों, कि जिन विषयों का वर्णन किया जाए वे वर्णनात्मक निबंध होते हैं। दूसरा प्रकार होता है अनुभवों के आधार पर अनुच्छेद, अनुभवों के आधार पर विषय। तो अनुभव आधारित विषय कौन से हैं? जैसे हमें किसी विषय का अनुभव हुआ, जैसे चढ़ते समय बस की प्रतीक्षा करते समय मुझसे बस छूट गई, या जब मैं विद्यालय में प्रथम आया। ये अनुभव ना हमारा कि हम विद्यालय में प्रथम आए, तो उसका उस पर हमें अनुच्छेद लिखना है। या अचानक वर्षा होने लगी, या जब मैं परीक्षा में लेट पहुंचा या विद्यालय पहुंचा, मुझे विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। के निबंध होते हैं वो अनुभव के आधार पर लिखे जाते हैं। अनुच्छेद हम 50-60 शब्दों में लिखते हैं। दोनों में अंतर समझो बच्चों। अनुच्छेद छोटे में या 10 या 12 लाइन 50-60 शब्दों में अपना अनुच्छेद पूरा करते हैं, और निबंध से 100 शब्दों में लिखा से लंबा है। तो दोनों में अंतर है। अब फूल खिलता, डाली पर पुष्प, खेल फूल, फिर आकाश की तरह उड़ सकता या उड़ सकती हो रही है ना, उड़ने की परिकल्पना कर रहे हो कि कैसे मैं पक्षी बनकर आकाश में उड़ता हूं या उड़ सकती। फिर चमकता तारा,
कल्पना हो रही है कि रात का समय है और तारे आसमान में चमक रहे हैं। तो ये कल्पना के आधार पर कुछ अनुच्छेद होते हैं। एक और तरह से हम समझ सकते हैं कि अनुच्छेद विचारात्मक विषयों का होता है, जैसे जियो और जीने दो, विचारों के आधार पर। बेटा डोंट राइट यस आई कैन अंडरस्टैंड। आपको वर्कशीट नहीं मिली है क्योंकि मैंने ऐसी कोई वर्कशीट भेजी नहीं है। मैंने आपको निबंध भेजा था जिसको कि आपको देखकर अपनी नोटबुक में लिखना था, और उसी तरह का एक निबंध आपको अपने शब्दों में लिखना था। ये आपका होमवर्क था। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए, आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ है। फिर और विचारात्मक विषय कैसे हो सकते हैं? जैसे प्रकृति बलवान की सहायता करती है, प्रकृति उसकी सहायता करती है जो पुरुषार्थ करते हैं, है ना, जो परिश्रमी होते हैं उनकी प्रकृति सहायता करती है। कि जो अनुच्छेद लेते हैं वो विचारों के आधार पर हो। तो आपको हमने आज 4 चीजें बताई। पहला होता है वर्णनात्मक विषय, वर्णन के आधार पर। दूसरा होता है अनुभवों पर आधारित विषय, आधार पर। तीसरा है कल्प के आधार पर काल्पनिक विषय, और चौथा होता है विचारात्मक विषय। अब इसी तरह से हम अपने अनुच्छेद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हम इन अनुच्छेद को अलग अलग विषयों में अलग अलग प्रकार में बांट लेते हैं बच्चों, और अनुच्छेद की शुरुआत कर सकते हैं। हमने इससे पहले एक बार आपसे बात की थी माँ के विषय में, कि हम माँ के ऊपर अगर निबंध लिखना चाहें तो चूंकि माँ हमारा लालन पालन करती है, बचपन से बड़े होने तक हमें मदद करती है, हमको पोस कर बढ़ाती है, तो उन पर आप एक छोटे 10 या 12 लाइन आराम से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना आप? टेल मी चिल्ड्रन, क्या माँ के ऊपर अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए एक छोटा सा अनुच्छेद 8 या 10 लाइनों का आप अपने शब्दों में लिखेंगे? किस तरह से माँ ने आपको धीरे धीरे चलना सिखाया, फिर जब पढ़ाई आपको कैसे वर्णों का, स्वरों का ज्ञान कराया, घर में से, शिक्षा तो पहले घर में से ही शुरू होती है ना, तो कैसे माँ ने आपकी शुरुआत की, आपको पढ़ाना सिखाया, कैसे आपको खाना सिखाया, चलना सिखाया, तो आप उनके विषय में 8-10 लाइनें आराम से अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। दूसरा निबंध आप लिखेंगे काल्पनिक कोई भी विषय ले लीजिए। ये तो हुआ आपके अनुभव पर आधारित। माँ को आपने बहुत समीप से अनुभव किया है, लेकिन कल्पना भी आप कर सकते हो। यस, वेरी गुड। आप कल्पना किसकी करोगे? कल्पना करो जैसे आसमान में तारे चमक रहे हैं, जुगनू चमक रहे हैं, और सर 1 मिनट के लिए सबको अनम्यूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे डाउट ये बच्चे लिख लिख कर भेज रहे हैं। मैम कोई भी वर्कशीट नहीं आई है। मैम ये कोई भी वर्कशीट नहीं आई ग्रुप पे। पहले पढ़ाया था, उसमें पहले चैप्टर का क्या नाम था? चिल्ड्रन, मैंने निबंध की टीचर आपके ग्रुप में, आपको वर्कशीट अभी मैंने नहीं भेजी है। क्लियर हुआ? ठीक है, वर्कशीट नहीं भेजी है, निबंध की पिक भेजी है। फाइन, समझ नहीं है तो लास्ट 10 मिनट में आप अपनी बात पूरी कह सकते हैं, बीच बीच में स्क्रीन शेयर ना करें। ओके?
हम कल्पना करेंगे, काल्पनिक विषय के विषय में हम बात कर रहे थे कि अब जो निबंध आपको लिखना है वो अपनी कल्पना पर आधारित लिखना है कि रात का समय है, आसमान में तारे चमक रहे हैं, जुगनू टिमटिमा रहे हैं और आप नौका विहार, आपके मन में नौका विहार यानी नाव से घूमने का मन रहा है। अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए आप इस विषय पर वर्णनात्मक या काल्पनिक विषय पर आप अनुच्छेद लिखेंगे। मैं आपको लिखकर भेजूंगी होमवर्क में, आप इसका अनुच्छेद लिखेंगे, ठीक है। कल मैंने, ये तो हुआ हमारी ग्रामर की बात, अनुच्छेद के विषय में बात और पत्रों के विषय में बात। जो लास्ट सेशन था उसको हमने कंटिन्यू किए हुए इस विषय पर बात की। बच्चों, कल शाम को मैंने आपको आपके लिटरेचर पार्ट से एक कविता खींचकर भेजी है, ग्रुप पर लिखकर भेजी है, जो आपको मिली होगी। कविता का नाम है खिलौने वाला। कविता का नाम है खिलौने वाला। तो आज हम उसी कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। माँ से अब एक बच्चा कह रहा है या कह रही है कि देखो माँ, खिलौने वाला फिर से आ गया और उसके पास बहुत सारे नए नए सुंदर सुंदर खिलौने हैं। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। फिर बच्चा अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ, उसके पिंजड़े में, जो उसने पिंजरा पकड़ा है, उसके पिंजड़े में हरे हरे तोते हैं और एक पैसे से मिलने वाली गेंद भी है। छोटी छोटी मोटर गाड़ियां हैं जो सर सर की आवाज के साथ दौड़ रही हैं या चलती हैं। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। और उसके पास सीटी हैं जो अनेक प्रकार की हैं और उसके पास खेलों का तो बहुत विपुल संग्रह है, यानी बहुत सारे खेल उसके पास हैं। उसके पास एक रेलगाड़ी है जो चाबी भर देने से भग 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 करके चलने लगती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। फिर वो बच्चा अपनी माँ से कहता है या कहती है कि उसके पास एक छोटी सी गुड़िया है, बहुत प्यारी है, उसने अपने कानों में बाली पहनी हुई है और उसके पास एक छोटा सा टी सेट है और छोटे छोटे लोटे और थालियां हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह कहा पुकार। और उसके पास क्या है कि छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार है और नए नए खिलौने को बेचने के उद्देश्य से वो जोर जोर से पुकार रहा है कि आओ नए खिलौने ले लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला करती है माँ ने लेने को साड़ी। फिर वो कहती है बच्ची कि मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, जो मुन्नू है उसने तो गुड़िया ले ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला करती है माँ से लेने को साड़ी। और सरला साड़ी लेने के लिए मचल रही है अपने माँ से, वो कह रही है मुझे साड़ी लेनी है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। फिर उसके मन में क्वेश्चन आता है कि माँ खिलौने वाले के पास साड़ी क्या कर रही है, वो तो खिलौने बेचने आता है, तो कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो साड़ी भी लेकर आता है, अरे साड़ी देने के लिए तो कपड़े वाला भी तो आता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौने लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। फिर वो गुहार करता है बच्चा अपनी मम्मा से, अम्मा से, कि तुमने मुझे 4 पैसे दे दिए हैं, अब इन 4 पैसों में अपने मन में विचार करो
कि 4 पैसों में मैं कौन से खिलौने लूं। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। फिर वो अपनी माँ से बच्चा कहता है कि आप सोचेंगी कि मैं तोता लूंगा, बिल्ली लूंगा, मोटर गाड़ी लूंगा या रेल ले लूंगा, लेकिन माँ मैं ये कभी नहीं लूंगा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, ये तो सारे बच्चों के खेल हैं। मैं तो तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। फिर बच्चा कहता है कि मैं तो तलवार खरीदूंगा, या फिर राम जैसे अपने तुणीर में तरकस रखते थे और बाण से उनको चलाते थे, ऐसे ही मैं राम के समान तीर कमान लेकर जंगल में जाकर किसी राक्षसी ताड़का का वध करूंगा जो राम ने किया था। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। फिर बच्चे की परिकल्पना देखो बच्चों कि बच्चा क्या कहता है कि तपसी यज्ञ करेंगे। भगवान राम को लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र आए थे, उन्होंने राम को दशरथ जी से मांगा था और कहा था कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें विघ्न ना पड़े, इसलिए हम आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आए हैं कि वो हमारी असुरों से रक्षा करेंगे। तो बालक के मन में वही कल्पना चल रही है कि तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र में बन जाऊंगा कि हे माँ मैं तपस्वियों की रक्षा करने के लिए वन में जाना चाहता हूँ। जब वे यज्ञ करेंगे तो मैं राक्षसों को मार के भगा दूंगा और ऐसे ही सारे भगवान राम के काम करते करते एक दिन मैं उन्हीं जैसा रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। फिर देखो अपनी माँ से कहता है बच्चा कि अगर आप मुझे वन जाने के लिए कहोगी तो मैं वन चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ यहीं पर रहूंगा और आपको मैं कौशल्या माँ की तरह पूजूंगा। पर माँ बिन तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। फिर जब वो माँ से दूर जाने की कल्पना करता है तो बेचैन हो जाता है और फिर कहता है माँ से कि माँ मैं तुम्हारे बिना में वन में नहीं जा पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही वन में जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं वहां कैसे रह पाऊंगा। दिन भर जंगल में घूमूंगा और फिर अगर घर नहीं होगा तो कैसे लौटूंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। फिर वो बच्चा कहता है कि मैं खिलौने खरीदने के लिए किससे पैसे लूंगा, किसे रूठ कर दिखाऊंगा, कौन मुझे बनाएगा, कौन मुझे अपनी गोदी में बिठाकर प्यार से मनचाही चीजें दिलवाएगा। इसलिए माँ मैं आपके बिना जंगल में नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा और आपके साथ ही मैं निवास करूंगा, आपकी बातें मानूंगा, आपसे बहुत सारे पैसे लेकर खिलौने खरीदूंगा। समझ में आई कविता, समझ में आई? ओके फाइन। अब मैं जो जिसको समझ में नहीं आई या जिसको कोई डाउट है वो बच्चा अपना हाथ ऊपर करके मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उन बच्चों को अनम्यूट कर दें। एनी डाउट चिल्ड्रन? यस, हृदयांश अरोरा। यस बेटा। व्हाट मैम? हाँ बेटे मैम बोलिए। मैम क्या हुआ? आपको कोई डाउट है? नो मैम। मैम
बोलिए। मैम कल्पना के विषय में कौन सा हम लिख सकते हैं? बेटा आप लिख सकते हो, जैसे आप कोई कल्पना कर रहे हो कि अरे बारिश आने वाली है, अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं आपको विषय लिखकर 2 विषय दूंगी, कोई भी एक काल्पनिक विषय पर लिख लीजिएगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा उसमें, ठीक है? मैम आप सबके लिए टॉपिक दोगे? हाँ बेटा मैं सबको टॉपिक दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, इन द ग्रुप। Yes, in the group. Yes, in the group. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम आपने मैम पत्र दिया है? हाँ बेटा मैंने ग्रुप में पत्र भेजा है। एक्सक्यूज मी मैम, हमारे व्हाट्सएप पे तो नहीं आया, ग्रुप में जो। ओके कोई बात नहीं, दोबारा भेज दूंगी। और बोलिए। मैं दोनों ग्रुप। मैम ने ये कविता पढ़ी है। कविता मैंने कल भेजी थी, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, लिटरेचर नोटबुक में, ठीक है? और कोई डाउट? मैम ने ये कविता पढ़ी है। पढ़ी है ना? हमने ये कविता पढ़ी है। ये लिखनी भी है और लर्न भी करनी है। कोई डाउट? ये कविता आपको पूरी समझ में आई बच्चों? यस मैम। यस इंद्रजीत कुछ कहना चाह रहे हो? समझ आ रहा है? आपको ये कविता समझ में आ गई बच्चों? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगी जिनके उत्तर आपको अपने शब्दों में देने हैं, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेजूंगी जो आपको नोटबुक में लिखने हैं और बाकी प्रयोग अपने शब्दों में करने हैं। ओके मैम। ठीक है मैम अपने फाइन। हाँ यस मैम अपने आप से शब्द बनाने आप दोगे? इसके शब्दार्थ में भेजूंगी, बाकी प्रयोग अपने शब्दों में आपको वाक्य बनाना है। मैम उसमें जो आप जैसे चैप्टर में से देख के कोई भी जैसे वर्ड। हाँ कोई भी शब्द मैं आपको दूंगी वाक्य प्रयोग करने के लिए, उसका वाक्य प्रयोग आप अपने शब्दों में। ओके मैम। और कोई डाउट? अवेश रोवनप्री ये बच्चे हैं हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम अगर हमारे पास नोटबुक नहीं है तो हम A4 शीट पे लिख के बाद में जब नोटबुक आ जाएगी तब उसमें पेस्ट करके कर सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप करो। आप अपनी रफ नोटबुक में करते जाइए। एक नोटबुक जो आपने बनाई है नहीं है मैम, वो हमने बनाई थी सारे सब्जेक्ट्स की, फिर हमने बना दी थी रिपेयर कॉपी, 2-3 स्टेप्स वो रह गई थी तो तभी हमें। मैम आइए बच्चों अगर आपके पास नोटबुक नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप उस नोटबुक पे लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तीसरा चैप्टर है, 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको ये तीसरा चैप्टर शुरू करना है। जो कविता पहले लिखनी है, उसके बाद वाक्य प्रयोग, प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज जो मैं भेजूंगी आपको। हाँ यस बोलिए। यस बेटा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? फाइन ओके आज का आपका समय पूरा हो गया है। हम आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जो होमवर्क मैं आपको भेजूंगी वो आपको होमवर्क करना है, ठीक है?
तब तक के लिए बाय बाय बाय। वैभव पंत। Yes, Vaibhav. Yes, sir. What are the agents of seed dispersal? Tell me. Air and Only these both are the agents, air and water. sir, But I had told you that wind, water, and animals, and explosion of Explosion. fruits also. Explosion of fruits also. explosion. ठीक है? तो मैंने आप लोग को क्या बताया था? ये फोर मैंने मीडियम्स बताए थे, एजेंट्स बताए थे, जिनके थ्रू सीड्स जो है डिस्पर्स होती हैं या फिर सीड डिस्पर्सल होता है। फर्स्ट विंड, सेकंड वाटर, थर्ड एनिमल्स एंड फोर्थ इज एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। ठीक, तो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, किस तरीके से नए प्लांट, अभी हमने पिछले लेक्चर में ये भी सीखा था कि सीड्स क्या होते हैं, सीड जर्मिनेशन क्या होती है, सीड जर्मिनेशन क्या होता है। तो सीड्स के थ्रू किस तरीके से नए प्लांट्स या बेबी प्लांट्स हमारे ग्रो होते हैं। और आज हम लोग सीड्स के थ्रू नहीं, आज हम लोग सीखेंगे कि प्लांट्स के पार्ट के थ्रू किस तरीके से सीड्स जर्मिनेट नए प्लांट्स स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो प्लांट के पार्ट्स के थ्रू हम लोग सीखेंगे। ओके, now I am going to share a screen. We see different types of plants around us. Some are big and some are small. But have you ever noticed that all plants, either big or small, thin or fat, share a similar structure? So today we will learn about different parts of a plant and why each part is important to the plant. Like we human have different parts in our body like hands, legs, nose, ear, etc.
They all are important for us. Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did A it. different First, go to role. Wix.com. Same way, Our start- plants also have many parts. Each part perform different tasks and are very important for the plants. In short, the plant has two major parts. The part below the ground ये बेटा is तो जो called part as हमारा root, and the part above the ground is अबव द ग्राउंड होता है उसको तो हम शूट बोलते हैं, और जो बिलो द ग्राउंड होता है उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, ठीक है। called as shoot. Let's look at the part below the ground first, that is roots. Roots are very important part of the plants. They fix the plant into the soil so it doesn't fall over. Roots take in water and nutrients from the soil that plants require for their growth. Now let us look at the parts above the ground. Do you know how water and nutrients from the roots travel up through all the parts of the plant? It is through the stem of the plant. The stem is the upper part of the plant. देखो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट्स के थ्रू, यानी जो हम होती हैं बिलो द ग्राउंड, जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो इस थ्रू प्लांट के एक हमारे प्लांट के हर एक पार्ट में होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर के साथ, ठीक है। तो वाटर जितने भी न्यू प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचते हैं स्टेम के थ्रू, ठीक है। The flat green part of the plants that makes food of the plant is called as leaf. पर ये जो पार्ट है प्लांट का, फोटोसिंथेसिस पढ़ी, फोटोसिंथेसिस में है कि लीव्स होती हैं क्लोरोफिल के में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू एंड सनलाइट के थ्रू अपने लिए फूड बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो अभी हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, अभी हम लोग नेक्स्ट में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे कि टोटल प्रोसेस होता क्या है फोटोसिंथेसिस और किस तरीके से हम फोटोसिंथेसिस करेंगे। ओके वत्सल, क्या कर रहे हो वत्सल? व्हाट यू आर डूइंग? गेम चल रहा है कोई? Okay, so this flat part is known as leaf, which makes the food for the plant. Leaves prepare food in the presence of sunlight, water and air. Leaves are known as kitchen of the plants. The most beautiful part of the plant is the flower. Flowers come in all colors, shapes and sizes. And flowers turn into fruits which we all love to eat, like the yummy mango. So we saw the plant has two main parts: root that grow below the ground and shoot that grows above the ground. This includes stem, leaves, flower and fruits. Now let us look at each of these parts in some more details. Are the roots of all plants of the same type? Look at the root of the bean plant. We see it has one main root. हर प्लांट की ना अलग अलग की रूट्स होती हैं बेटा, ठीक। तो हम इसमें अब ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप की रूट्स होती हैं और पार्ट क्या होते हैं रूट्स। Which grows from the end of the stem into the soil, and many small roots grow from this main root. This main root is called as
taproot. You all must be liking carrot and radish, I'm sure. The carrot is nothing but a root, the main root of the carrot plant, and it has many small roots that are growing from that main root. So carrot is a taproot. Now let us see the roots of the green onion plant. They do not have one main root, as you can see. Instead, they have many thin and bushy roots growing from the end of the stem. These tiny and bushy roots are together called as fibrous root. Let us see another example. Grass. Here also many thin roots are growing from the end of the stem. Now class, going to show you one thing more कि what are tap roots and fibrous roots. ठीक है, तो अब जो देखी थी, अब मेरी तरफ भी देख लो व्हाइट बोर्ड पर. ठीक है, मान लेते हैं कि यह हमारा बिल है. ऊपर तो प्लांट है, सबको पता है, जो प्लांट बना देते हैं, बना देता हूं मैं ऐसे. ठीक, अब इसके नीचे रूट्स होती हैं, ग्राउंड के नीचे रूट्स होती हैं, तो कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनमें एक कॉमन रूट होती है ऐसे. ठीक, और उसके आसपास बहुत छोटी छोटी रूट्स और निकली हुई होती हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके से उसके आसपास कुछ और रूट्स निकली हुई होती हैं ये ऐसे. तो जो ये एक होती है, देखना यहाँ पर जो मेन रूट होती है, ये तो एक मेन रूट है, और इसके आसपास जो हो गई है हमारी स्मॉल रूट्स हो गई, स्मॉल रूट्स हो गई. ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक मेन रूट और दूसरी ये हो गई हमारी क्या, स्मॉल रूट. तो बेटा ऐसी पर